Today we have discussed ट्रिग्नोमेट्री आल्सो। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को, जो आपका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में कई मेनी टाइम्स जो है आ चुका है, और ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही एचओटी क्वेश्चन, बहुत ही हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चंस हैं, जो अक्सर जो है बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, उसमें ये सब क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज से रिलेटेड है। वो क्लास 10th बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये टाइप के क्वेश्चन जो है 5 नंबर के बोर्ड में वो अक्सर पूछे जाते हैं। 5 नंबर 3 नंबर्स ये अक्सर पूछे जाते हैं, और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। हालांकि ये जो क्वेश्चन है इसमें एक लॉजिक है। अगर आपने उस लॉजिक को समझ लिया तो ये क्वेश्चन जो बिल्कुल आसान है। एक आइडेंटिटीज इसमें यूज़ करना है, और उस आइडेंटिटीज का यूज़ करके हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों, we have known that the identity of trigonometrical identities of cosec square theta plus cosec square theta minus cot square theta. Here given that m is equal to cosec theta plus cot theta. So using the identity cosec square theta minus cot square theta is equal to 1. So first of all, here a square minus b square, using the identity here a square minus b square, so this will be cosec theta plus cot theta. First bracket, another bracket, cosec theta minus cot theta is equal to 1. Here using the identity a square minus b square is equal to a plus b and a minus b. It's clear? Now, here given that cosec theta plus cot theta, cosec theta plus cot theta is given that m, we can write here m bracket in cosec theta minus cot theta is equal to 1. Now therefore cosec theta minus cot theta is equal to 1 by m. We can write here equation 2, and this equation, given equation, write here 1. Now we can solving equation 1 and 2 and find out the value of cosec theta in terms of m and cot theta by elimination, using the here elimination method. Cosec theta plus cot theta is equal to m. Here this equation 1. Adding equation 1 and 2 on, adding equation 1 and 2, we get adding equation 1 and 2, so this we cancel, cot theta cancel. Now 2 cosec theta is equal to m plus 1 by m. Now therefore LCM of these terms
m multiply with m square, m divided by m, we get 1, 1 multiply 1, we get 1. Clear everyone? Any doubt? Now cosec theta is equal to m square plus 1, this 2 be transposed to the right hand side, here we multiply, right hand side will be divide, so this will be 2m. No, here only 2 cosec theta is equal to m square plus 1 upon m. Clear? Write here equation third. And this value, and equation 2 and 1 be subtracted. Now in this case equation 1 and 2 को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दिस भी कैंसिल हो जाएगा. जब इसको हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, या तो या कोसेक थीटा का वैल्यू यहाँ रख करके कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए. ऐड करने पे ये दोनों जब कैंसिल हो गया, सब्ट्रैक्ट करने पे ये दोनों कैंसिल होगा, ये इसका साइन चेंज हो जाएगा. यहाँ पे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, m जो होगा वो माइनस हो जाएगा. तो इन दिस केस दिस भी कैंसिल. Subtracting equation 1 and 2 we get, subtracted, this will be cancelled, this will be minus 2 cot theta is equal to 1 by m minus m. Minus 2 cot theta is equal to m be LCM of these terms, 1 minus m square. Here write equation 4. Now equation 3 and 4 को हम डिवाइड कर रहे हैं. यहां पे आपको लाना क्या है, cos थीटा लाना है. हम क्या करेंगे कि इक्वेशन ये आपका 3 है और ये इक्वेशन 4 है, इसको डिवाइड करके देखते हैं. ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 3 and 4, now therefore इक्वेशन इस इक्वेशन 3 और 4 को जो है डिवाइड कर देते हैं. तो यहाँ पे 4 को 3 से 4 by 3 से डिवाइड करिए. इक्वेशन आप देखेंगे कि जो ये इक्वेशन ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 4 on dividing equation 4 by 3. Now therefore minus 2 cot theta is equal to 1 minus m square by m upon 2 cosec theta. वो 2 cosec theta का वैल्यू ऑफ m square plus 1 upon m. दिस m कैंसिल, इससे इसको काट दिया,
ये इससे इसको काट दिया तो ये माइनस नहीं कटा, इस माइनस को ले जाके इधर डिवाइड कर दीजिए। जब इस माइनस से ले जाके उधर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, ये कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इसको हम लिखेंगे तो 1 क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू, ये साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और ये क्या हो, यहाँ माइनस, ये इस माइनस से इसको जब डिवाइड करेंगे ऊपर वाले को तो ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे का प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो सो क्या हो गया, m² -1 अपॉन m² +1। दिस विल बी, यहाँ पे आपका क्या हो गया, ये हो गया, इस चीज़ को देखेंगे यहाँ पे कि cos थीटा बाई 1 साइन थीटा विल बी कैंसिल, और इसमें से माइनस को मैंने यहाँ ले के डिवाइड कर दिया इसको, तो ये माइनस हो जाएगा ये, और ये क्या हो गया आपका प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो गया, तो m² -1 अपॉन m² +1 इज इक्वल टू, इधर क्या आ गया, cos थीटा बाई 1, cos थीटा को 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हुआ, cos थीटा को 1 से डिवाइड करेंगे cos थीटा हुआ, और ये क्या हो गया, ये आपका होगा m² -1 अपॉन m² +1। इट्स प्रूव्ड, ये आपका हैंस प्रूव्ड हो गया। तो अगर ये आपका क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस बार ये क्वेश्चंस जो है आने की संभावना इसकी प्रोबेबिलिटी जो बहुत ज़्यादा है, तो इस क्वेश्चंस को बच्चों ध्यान से आप लोग नोट करिएगा, ध्यान से इस क्वेश्चंस को कई बार प्रैक्टिस करिए। ये कहा गया है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, प्रैक्टिस बी मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस बी मैन परफेक्ट। तो जितना आप ज़्यादा मैथ में प्रैक्टिस करेंगे, जितना मैथ बनाएंगे, मैथ वो आपका उतना ही कैलकुलेशन जो है तगड़ा होगा, और कौन सा क्वेश्चन जो है किस आइडेंटिटी को यूज करके जो है फटाक से बनाया जा सकता है, ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।